Bagi and I will appear on the behalf of prosecution with my co-counsel Sakshi and Tanul. I will readdress the term reference of this case of these cases in this court. Your Honor, with your permission, can I recite the fact of this case? Yes. The prosecution case is that police station in charge, civil line Thana, received the information that there is a person from an informer that there is a person whose name is Ramesh Babu, and he is the resident of Pachpedi. In his possession there are some counterfeit currency note, and he had that knowledge that that currency note is a counterfeit currency, but still he used that counterfeit currency as in a genuine form. After receiving this information, and completing some other formalities, sub-inspector with his police team went to the house of Ramesh Babu without obtaining the search warrant due to urgency The discussion is in by that side that the accused one is guilty or not guilty. All the facts are clearly stated in the case. We do not to discuss it in very detail. It's very clear that accused one is guilty of that offence. Nobody is, we have find that first of the information when received by to the police, that then the investigation has done by without the warrant because it is very urgent, and then also the guilty accused one is found guilty because it is proven that in a box some amount of counterfeit are found there. And then after complaining, the investigation officer has also gone through the process, and they also registered and found that he is guilty because some amount of 3 lakhs rupees, 1,000 rupees are found in his box in his house. And as it is stated, it has not been decided by only one fact. They have gone through the process by process. First by the complaint under CRPC filed, then they gone through the process. They then clear there that he is guilty. Then again expert has came through. They have done their investigation process. Again they find that he is guilty of the offence. There is no question and doubt in this that he is accused one is guilty of counterfeit notes. And under IPC Indian Penal Code 484A and 480C is there prevailing for the counterfeit currency notes. So I don't think so there is no much more discussion needed in this. He is guilty. महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे 2 वकीलों ने कहा है कि जो अभियुक्त है वो पाया गया है कि उसके घर में एक पैसों का बॉक्स मिला हुआ है जिसमें नकली नोट पाए गए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 489A और 489C के तहत इनको गिल्टी माना जाता है। और जो माननीय ये भी इसमें पाया गया है कि जो इनके पास नोट मिले गए हैं वो स्थानीय स्टेट बैंक के मैनेजर द्वारा जब्त किए गए, और उनकी जांच में ये पता चला है कि वो जो नोट पाए गए हैं वो नकली थे। उनमें उनका सही वाटरमार्क नहीं था, निर्धारित चांदी का तार नहीं था, और उनका जो कागज था वह भी तुलना की श्रेणी से खराब था। इस आधार पर ये पाया गया है कि जो अभियुक्त है उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। माननीय न्यायालय से मैं अभियुक्त की ओर से साक्ष्य पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया अभियोजक पक्ष ने बताया कि मेरे अभियुक्त के पास नकली करेंसी नोट पाए गए हैं। अभियुक्त के पास नकली करेंसी नोट पाए गए हैं। पुलिस द्वारा जांच करने पर मेरे अभियुक्त रमेश बाबू के यहाँ पर नकली करेंसी नोट पाए गए, जबकि अभियुक्त उस वक्त अपनी बहन के यहाँ कानपुर में था। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर वहां पर पाया गया कि उसके यहाँ पर नकली करेंसी नोट पाए गए और मेरे अभियुक्त रमेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 489 का यह धारा यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति नकली या जाली नोटों को अपने पास रखता है या उसको अपने कब्जे में लेता है वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसको एक केस के तहत बताया गया मोहनलाल शर्मा बनाम राज्य के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी व्यक्ति के पास अगर नकली या जाली नोट मिलने से वह व्यक्ति धारा 489B का दोषी नहीं पाया जाएगा जब तक
उसका जाली नोटों से अनुचित लाभ लेना ना हो। धारा 489C। धारा 489C के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, जिस समय आरोपी करेंसी नोट या बैंक नोट को अपने कब्जे में रखें या उसे जानकारी थी कि यह नोट नकली जाली हैं। दूसरा है, आरोपी का उद्देश्य उन जाली या नकली नोटों से जानबूझकर अनुचित लाभ लेना था। माननीय महोदय जी, बचाव पक्ष से अभियुक्त साक्ष्यों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं मैं उनका खंडन करती हूँ। उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए हैं वह सारे झूठे साबित होते हैं। अभियुक्त रमेश बाबू नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे झूठा फंसाया गया है। कथित घटना को अभियुक्त रमेश बाबू शहर से बाहर थे, वह जबलपुर में नहीं थे, वह कानपुर में थे और उनको झूठा और गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रकरण की केस डायरी में पुलिस ने यह तो साबित कर दिया कि नोट नकली है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि मेरे अभियुक्त रमेश बाबू ने इन नकली नोटों का उपयोग अनुचित लाभ पाने या जानते हुए नोटों को अपने पास रखा है कि नोट नकली है, जबकि मेरे अभियुक्त रमेश बाबू को नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें झूठा फंसाया गया, उन्हें दोष मुक्त किया जाए। बॉम्बे एक केस है, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि इस आधार पर किसी को सजा नहीं दी जाती कि उसके पास जाली नोट मिले हैं। कोर्ट का कहना है कि यदि किसी को सजा देनी है तो अभियोजी पक्ष को यह साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति के पास जाली नोट मिले हैं उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके पास जाली नोट है। इसमें दो बातें और बताई गई हैं, जबकि अभियोजी पक्ष ने ऐसा भी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी को यह पता था कि नोट जाली। कोई सबूत न होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे अभियुक्त रमेश बाबू पर लगाई गई धारा 489 झूठी है तथा रमेश बाबू को 489C से मुक्त किया जाए। As the defendant party says that his sister has said that he is not in the town when the crime has committed. No, because the sister is always on his brother's side, and no other defenses and no other witness are available who says that sister is saying right. And what is the proof this witness has that his brother is not in the town? Nobody else has seen him, only the sister, and the sister and the blood relation are always on the side of their brothers and their family members. So it is not proof by only saying his sister that he is not in the town when the crime has been committed. And the second point was saying that this is not proved by only that he has the counterfeit note in his home. Nobody has for fun or for without any reason having the counterfeit in his house. He is not a child that somebody has came to his house and put in something offensive for his case. Because it is found that he has counter, and when the investigation process has going on, and when it is clearly mentioned that when the police are arresting him, he has nothing to say about that he is not guilty. He has clearly remained silent and not even speaking a word for his side that he is not guilty. He has nothing to say in his defense, and he has just gone with the police. So it is clearly stated, and it is clear that he is a guilty. जैसा कि हमारे अभियोजक पक्ष ने बताया था, उनका बहन रमेश बाबू की बहन से उनका ब्लड रिलेशन है। ओके, तो इससे यह साबित नहीं होता कि बस उसका ब्लड रिलेशन है तो इसीलिए उसने ऐसा बोला। ये आपके द्वारा जो केस डायरी के द्वारा जो आपके साक्ष्य पेश किए गए हैं, तो पुलिस अधीक्षक और जब्ती के द्वारा जो साक्ष्य वहाँ थे और मैनेजर और जो देवास नोट विशेषज्ञ के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है और परीक्षण के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है और यह साबित किया है कि नोट नकली हैं। लेकिन मेरी अभियुक्त का उन नकली नोटों से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभियुक्त को झूठा फंसाए जाने की साजिश की जा रही है। अभियोजन पक्ष अभियोजन पक्ष के से जो अधिपत्र में जो करेंसी पाई गई है वह मेरे अभियुक्त को पता नहीं, जो कि साक्ष्यों के समक्ष में नकली नोट बरामद हुए। उनके विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार वह नकली जरूर थी, लेकिन मेरी अभियुक्त को यह पता नहीं था कि उस बॉक्स में नकली नोट पाए गए। उसने देखा था कि वो बॉक्स है, लेकिन उसने ये नहीं देखा था कि उसके अंदर नकली नोट पाए गए, नकली नोट रखे हैं। जबकि अभियुक्त का कहना है कि मैं अधिपत्र से बरामदगी हुई है करेंसी उसे झूठा फंसाया गया है। मेरी अभियुक्त जबलपुर से बाहर वो है कि बहन के यहाँ कानपुर गया, जैसा कि उन्होंने कहा कि वह अपनी बहन के यहाँ
बचाव साक्षी के रूप में बहन का जो कि अभियुक्त की बहन थी कथन कराया गया, जो कि अभियुक्त रमेश बाबू की बहन ने उसने व्यक्त किया कि कथित दिनांक को अभियुक्त शहर में नहीं, जबलपुर में नहीं था, वह उसके घर पे था, कानपुर में था, उसने कोई अपराध नहीं किया है। साक्षी ने पूर्व परीक्षण में स्वीकार किया कि जब उसे यह जानकारी मिली कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ है तो उसने पुलिस को ऐसी शिकायत नहीं की थी। उसका भाई उस समय उसके घर कानपुर में था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका भाई जब कानपुर रेल द्वारा आया था, वह जबलपुर में उस समय नहीं था। As the defendant party is saying that it is clear that only one evidence you have that his sister is saying that he is not in a town. It is not the mayor or it is a very strong proof to say that he is not is guilty. When it is gone through the process, the expert under Indian Evidence Act section 45 expert opinion is saying that he is guilty, then why only by saying a sister that he is not in a town, he is not guilty of offences? And even if not knowing that it is a counterfeit note, having not done anything or not using that for an offense, still finding a counterfeit note in a house itself is a crime. So under 494A he is guilty. यह भी 498A. यह भी तो हो सकता है कि अभियुक्त रमेश बाबू को झूठा फंसाया जा रहा है, उसके बैग में किसी ने नोट भी रखे हो। इन कथनों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि नोटों के बारे में अभियुक्त को ना ही कोई जानकारी थी, ना ही उसे कुछ पता था, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। कथित दिनांक को अभियुक्त शहर से बाहर था। इस तथ्य को उसने समुचित साक्ष्य में प्रमाणित भी किया है कि महोदय जी, मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरे अभियुक्त रमेश बाबू को दोष रहित किया जाए, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, दोष मुक्त किया जाए। Avdesh Kumar Saxena, all the facts are the same, and here the court has considered that the victim is guilty, so nothing is different from this case. It is very clear that he is guilty of count. जैसा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मेरे अभियुक्त के पास करेंसी नोट पाए गए हैं, या उसके पास करेंसी नोट तो पाए गए, ये तो सभी ने देखा, ये सच तो हर किसी के पास है, मतलब उनने अपने रिपोर्ट पेश की है, मतलब। और मेरे अभियुक्त को किसी ने उस करेंसी नोटों से किसी भी तरह का अनुचित लाभ लेते नहीं देखा है, ना ही उसने कहीं भी उन नोटों को चलाने की कोशिश की है। इस आधार पर मैं अपने अभियुक्त को दोष मुक्त करने की इजाजत चाहती हूँ। Doesn't have the knowledge. It is clearly mentioned in the case. You can read in the 4 lines of the first paragraph that he has intending and having the knowledge that it is a counterfeit currency note. I would like to say to the court that please put an eye on it, that it is clearly mentioned that he has a knowledge of it, that these are counter currency note, and nobody is for nothing good keeping a currency note in his house. जैसा कि अभियुक्त को जब मालूम ही नहीं था कि उसके पास करेंसी नोट है, तो वह उनका लाभ कैसे प्राप्त करेगा, पहले आप ये बताइए। और आप इस प्रकार कोई साक्ष्य पेश कीजिए ना कि हमारे अभियुक्त ने कोई उसका लाभ लिया है। Evidence to submit, and you had only one that his sister is saying that he is out of town. No, and the expert opinion, investigation process, and itself accused has nothing to say when the court is arresting him and asking in his defense that you are guilty and not. It is mentioned that he has said nothing and remained silent and go on to with the police. It is itself saying, his silence is speaking itself against him that he is guilty of his offense. Otherwise he can say it that I don't have any knowledge about it, I am not considered about it, and he said nothing, even a single word, and gone with the police for other investigation process. जैसा कि अभियोजन पक्ष का कहना है कि मेरे अभियुक्त को उन नोटों के बारे में पता था, ठीक है, तो मेरा कहना है कि वो जब उसे पता होगा तो उनका अनुचित लाभ तो लेता है। अगर उसे मालूम नहीं तो वो बॉक्स की As 489A says that it has the help of knowledge, I rest my case in its favor.